ویرا سے بہت کم ملاقات ہو پاتی تھی اس کی۔ رات کو وہ بہت دیر سے واپس آتی اور یونی میں وہ اس کے ڈپارٹمنٹ جا نہیں سکتی تھی۔ ویرا کی اسٹڈی ٹف تھی تو اسے لائبریری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ امرا نے پہلی بار کے تجربے کے بعد وقت سے پہلے اپنی اسائنمنٹ بنانا سیکھ لیا تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ اور کام ہی کیا تھا۔ یونی میں اس کے بہت سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے دوست اسے ڈھونڈتے اس کے پاس آتے کہ وہ کہاں گم ہے، نظر کیوں نہیں آتی، اور اس کے ایشین فلیگ نے لہرانا کیوں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے سائیکل کسی کو آج کل گرا کیوں نہیں رہی، اور اب ریس کب ہوگی کال کے ساتھ، بلکہ اب تو فٹ بال میچ ہونا چاہیے۔ کال کے ساتھ اس کی سائیکل ریس اتنی مقبول ہوئی تھی جیسے اس نے ورلڈ سائیکلسٹ کا میڈل جیت لیا ہو۔ بہت بڑی تعداد آئی تھی اسٹوڈنٹس کی ریس دیکھنے۔ وہ سب امرا کو سپورٹ کرنے آئے تھے۔ اتنی اہم تھی امرا ان کے لیے، اور اب بھی وہ اسے اپنی پارٹیز میں بلانا نہیں بھولتے تھے۔ دائم نے نوال کی برتھ ڈے پارٹی پر اسے بلایا، لیکن وہ بار بار کے اصرار پر بھی نہیں گئی۔ اخبارات میں ویرا کے آرٹیکل دھڑا دھڑ آ رہے تھے۔ وہ ان آرٹیکلز کو پڑھتی اور ان کے تراشے کاٹ کر اس نے ایک فائل بنانی شروع کر دی۔ اسے یہ سب پاکستان اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ اب حقیقت میں وہ ویرا کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتی تھی، ایک ایسی دوست جو اسے اب تک کی زندگی میں نہیں ملی تھی۔ اس نے کال کو چھرا لگوایا کہ امرا ہر حال میں جیت جائے۔ ویرا کے لیے اس کی جیت اتنی خاص تھی۔ وہ فہرست بناتی تو تھک جاتی جو کچھ ویرا نے اس کے لیے کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ روس لے جانا چاہتی تھی، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، اور امرا واقعی میں اب اس کی مٹھی میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ اختتام وقت کا ہو یا کسی عمل کا، کتنا بھی خوشگوار ہو، دکھی کر جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا دل پر آری چلا جاتا ہے۔ سب ختم ہو رہا تھا، سب۔ فارغ وقت میں وہ البم بناتی رہتی، کال، ویرا، سائی اور آلیان کی مختلف تصویریں کاٹ کاٹ کر چپکاتی رہتی، ساتھ ان کی کئی باتیں لکھتی جاتی۔ ایما برتھ ڈے پارٹی کی جتنی تصویریں یونی میں پھیلی تھیں وہ سب اس نے حاصل کر لی تھی۔ ہال میں ہونے والے ایما برتھ ڈے پارٹی ڈرامہ کی تصویریں بھی اسے مل گئی تھی، جس میں آلیان ایما کا باپ بنا تھا، سائی ایما کی ماں اور شاہویز ایما، اور وہ سب کال پر قہر بن کر برس رہے تھے، اور باقی ہال میٹس ہنس ہنس کر مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اس نے اس البم میں اپنا سارا جہاں سمیٹ لیا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنستی اور روتی رہتی۔ وہ ان سب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل ان سب سے آباد رہنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والے تھے۔ لیڈی مہر کو کہانیاں سنانا بھی اس نے بند نہیں کیا تھا۔ اسے آخر کار خود سے کہانی بنانا آ گیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کی پسند کی شادی کرنے والوں کے قصے کہانی بنا کر سنا دیے، جسے بہت پسند کیا گیا۔ عین البتہ درمیان میں بہت سوال پوچھتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں ماموں کو کیوں مسئلہ ہے، یا فلاں تایا جی یا دادی جی یا ابا جی کو، اور آخر پھوپھو جی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے کیوں نہیں کر دیتی، اسی ایک لڑکے سے کیوں، اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں دی، اور آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم آج سے ہمارے لیے مر گئے۔ نشستگاہ میں آتش دان کے پاس ویرا کے علاوہ وہ سب ہوتے۔ کرسمس آنے والی تھی تو وہ لیڈی مہر کے بچوں اور ان بچوں کے لیے تحائف بھی پیک کرتے جاتے۔ ایک پہاڑ تھا تحائف کا جو انہیں پیک کرنا تھا۔ وہ اور سادنا مل کر ان تحائف کی خریداری بھی کرتے جو لیڈی مہر کو بہت پسند آئے۔ آلیان جاب پر جانے سے پہلے گول دائرے کی صورت سائیکل چلاتا ہی جاتا، خود کو چکروں میں لے لیتا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر چکر آنے لگتے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ کال اور وہ ایک ساتھ واپس آتے اور کسی نہ کسی ہال میٹ کے کمرے میں گھس جاتے، پیزا منگواتے، فلم دیکھتے، اور کلاس میں اپنی آنکھیں بامشکل کھولتے پائے جاتے، اور ایسے ہی وہ اونگ رہے ہوتے کہ شاہویز نے دونوں کے ناک کے نتنوں میں 2 عدد پینسلیں ارس دیں اور تصویر کھینچ کر دی ٹیپ مانچسٹر میں بھجوا دی۔ امرا نے وہ تصویر دیکھی تو وہ اختیار ہنستی اور تصویر کو محفوظ کر لیا۔
दूसरी तरफ आलियान ने खूब जमकर खरीदारी की छुट्टियों में टूर पर जाने से पहले तुम कितना बदल गए हो, कितनी फजूल चीजें उठा लाए हो। साइन ने उसकी खरीदारी देखकर कहा, हाँ, ताकि अगली बार अगर वलीद मुझे देखे तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बिक सकता हूँ, क्योंकि शायद मैंने हसरत ज़्यादा जिंदगी गुजारी है। चैरिटी के लिए फजूल खर्ची नहीं करते थे, नेकी करते थे। सिर्फ एक इंसान को दिखाने के लिए फजूल खरीदारी कर रहे हो, नेकी ज़ाया कर रहे हो। साइन ने तासुब से कहा। नई खरीदी गई शर्ट्स को अपने साथ लगा लगा कर देखते आलियान के हाथ रुक गए। मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, वलीदुल बशर जैसा, संजीदगी से वो पूछ रहा था। उसके सवाल पर साई सहम कर उसे देखने लगा। तुम क्या क्या सोचने लगे हो आलियान? उसने नरमी से कहा। काल आया, सारे खरीदारी को देखा, 2 शर्ट्स उठाई, 1 जोड़ा जूते, 1 हुड और अपने कमरे की तरफ ये कहते भाग गया, क्रिसमस का गिफ्ट मैं अलग से लूंगा। क्रिसमस की छुट्टियों से चंद दिन पहले फुटबॉल मैच की धूम मची और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से उससे मुतल्लिक खबरें सुनी गईं। फ्रेशर और आलियान कार की 2 टीमों के दरमियान मैच था। आपस में उन्होंने इनामी रकम भी तय की थी। कार्ल अमरहा के पास आया। हमारा मैच है, टीम का हिस्सा बनना है तुम्हें। मुझे खेलना आता है, ना मुझे इसमें दिलचस्पी है। तुम्हें सिर्फ भागना है। बर्फ पर भाग तो लोगी ना, वरना गिरती रहना। गोल करने की जरूरत नहीं, ना ही डिफेंस। तुम बहुत एंजॉय करोगी अमरहा। मेरा ख्याल है तुम्हें मुझे फौरन हाँ कह देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल। वो अपने डिपार्टमेंट की दीवार के साथ पुश टिका कर खड़ी थी। देखने आओगी? वो उसके सामने खड़ा था। नहीं, वो बिला वजह किताब का कोना मरोड़ने लगी। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि हम कभी दोस्त रहे हैं। याद है सब, और ये भी कि वो सब कभी था। मैं तुम्हें बर्फ में दबाना चाहता हूँ। मुझ में बर्फ में दबने की अब ताकत नहीं रही। तुम मुझे जमीन में दफना सकते हो। आखिर यूनिवर्सिटी की हर लड़की मुझसे दूर क्यों भागती है? आखिर तुम हर लड़की को दूर क्यों भगा देते हो? इतना अच्छा तो हूँ मैं। उसने मुंह लटका लिया, फिर एकदम हंसकर बोला, अब तो आओगी ना? अमरहा ने नाम में सर हिला दिया। तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया, लेकिन मेरी तरफ से माजरत। तुम एक उलझा सवाल लगने लगी हो, बिल्कुल आलियान की तरह। चिढ़ के कहकर वो आगे बढ़ गया। आलियान, उसने उस नाम की सरगोशी की ऐसे जैसे कोई जुर्म कर रही हो। कार्ल को जाते देखकर उसका दिल चाहा कि उसके पीछे जाए, वजनी फाइल उसके सर पर दे मारे और कहे, हाँ बड़ी, मैं जरूर खेलूंगी, हम फ्रेशर को हरा देंगे। लेकिन वो ये ना कर सकी। वीरा ने भी उसे मनाना चाहा मैच के लिए, लेकिन उसने तरीके से उसे मना कर दिया। एन गई थी और अपने मोबाइल से उसे मैच दिखा रही थी। उस मैच की धूम मची थी। वो बर्फ पर भाग रहे थे, गिर रहे थे, लड़ रहे थे। एमा भी फ्रेशर की टीम का हिस्सा थी और कार ने इतनी बार उसे बर्फ पर गिराया कि बेचारी के मुंह से खून निकलने लगा और वो फर्स्ट हाफ से पहले ही मैच छोड़ के चली गई। तीनों गोल आलियान ने किए थे और वो बर्फ पर ऐसे भागता रहा जैसे जमीन को डोन डालना चाहता हो, और फुटबॉल को उसने ऐसे पैरों के निशाने पर रख रख कर उछाला जैसे संगबारी करके किसी को मार डालना चाहता हो। आलियान कार की टीम जीत गई। उस रात उसे फिर नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ा। उसे आलियान, वीरा, कार के पुरजोश नारे रात भर सुनाई देते रहे। वो अपने दिल के मकाम को मसलती रही। नींद की गोलियां भी नींद लाने में नाकाम हो गईं, तो वो उठकर बैठ गई अपने बिस्तर पर और गहरे गहरे सांस लेने लगी और मैच की रिकॉर्डिंग निकालकर आलियान को बर्फ पर गिरते, उड़ते, फुटबॉल की तरफ लपकते देखने लगी। और उसने ये भी जान लिया कि उसे अब सिर्फ पढ़ने से ही सरोकार नहीं रहा। एक आलियान में कितने ही नए इंसान घुस आए हैं। और फिर क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो गईं और सब जाने लगे। मैनचेस्टर राजहंसों से खाली होने लगा। हमारे साथ चलो अमरहा। साइन ने उसकी मिन्नत की। मुझे नहीं जाना, दादा ने मना किया है। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, फिर सच ये है कि मुझे नहीं जाना, उसने बेतासुर अंदाज में कहा।
जिसे देखकर साई अफसरदा सा होकर खामोशी से चला गया। वीरा ने भी उसे साथ चलने के लिए कहा कि उन 6 लोगों का ग्रुप जा रहा है, वो भी चले, लेकिन उसने बहुत आम से अंदाज में पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल दिया। फिर तो ये मौका नहीं मिलेगा ना अमरहा, एक साथ होने का शायद ये आखिरी चांस है। उसने वीरा को मुस्कुरा कर दिखा दिया, लेकिन साथ फिर भी नहीं गई। आलियान, कार, साई, वीरा, शाहवेज और उनका कोई दूसरा मुश्तरका दोस्त मिलकर जा रहे थे। लेडी मेहर ने साई को बुलाकर हदायत दी थी कि हर वक्त आलियान के साथ साथ ही रहना है। उसे इन सब के जाने का इंतजार था। उसे एक अहम काम करना था जिसका मौका फिर कभी नहीं मिलना था। और जब वो सब चले गए तो वो यूनी आ गई। बर्फ जुदाई की पैगंबर है, ये बहार के दरमियान हाइल है। आसमान से यही पैगंबर नाजिल हो रहा है। किसी दिल गिरफ्ता परी की फराग दीदा उंगलियों से निकलते बर्फ के साथ की मानिंद धुंध अपनी दिलरुबाई के किस्से बयान करने से ज्यादा फराकिया किस्सों पर रोने पर माइल थी। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी की सड़क पर आई, धुंध ने दर्द बीना की तरह उसे लिपट जाना जरूरी समझा। वो बिजनेस डिपार्टमेंट नहीं जा सकी। वो उसकी बैरूनी दीवारों के पास जाकर खड़ी हो गई और उन दीवारों पर अपने हाथ रख दिए जिनके साथ वो लग कर खड़ा हुआ करता था। उसने सारी दीवारें छू डाली और वो उन दरख्तों के पास आ गई जिनके करीब वो खड़े हुए थे। उस हिस्से में जहाँ कभी वो बैठे थे, उन कोनों में जहाँ बैठकर वो किताब पढ़ा करता था और कॉफी पीता था। वो नजरों से उन जगहों की नजरें उतार रही थी। अब उसे डर नहीं था कि कोई उसे देख लेगा, इसलिए उसने अपने गीले गाल साफ नहीं किए। जब से उसने उसे थप्पड़ मारा था, उसने उसे फासला रख कर भी नहीं देखा था, उससे बात नहीं की थी। अस्पताल में वो सर झुकाए बैठी रही थी। ये सब उस अहद का हिस्सा था जो उसने खुद से किया था कि वो उसे और तकलीफ नहीं देगी, लेकिन अपने लिए वो और तकलीफ इकट्ठी करने यहाँ उसके तस्वुरात से लिपटने आ गई थी। सफेद मैनचेस्टर में खून आलूद यादें अपनी बुनियादों से उठ खड़ी हुई और जिंदगी ने उसके अश्कों पर तरस खाकर पीछे की तरफ अपनी सवारी मोड़ ली। तानसेन ने चरागाह करने के लिए दीपक राख की चौकरी जमाई। सफेद धुंध में जुगनू टिमटिमाने लगे और आसमानी मरगोलों को चाक करता आलियान उसकी तरफ बढ़ने लगा। दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से। लेकिन अब उसे उससे भागने की जरूरत नहीं रही थी। वो तो चाहती थी वो उसकी तरफ आए, और वो आ रहा था। जो हकीकत में वाक़या ना हो सके, वो करीब की चाह वाक़या करवा लेती है। वो एड़ी के बल घूम गई और उसने हर तरफ से उसे अपनी तरफ आने दिया। उसे उस ख्वाब में सराब होने पर कोई इतराज ना हुआ। आलियान, उसने सरगोशी को झटका और आवाज को बुलंद हो जाने दिया। वो जूनी मेहराब के पास थी। उस मेहराब के साथ वो कमर टिका कर उसका इंतजार किया करता था। उसने उस मकाम पर अपने गाल रख दिए और दोनों हाथों से उस जगह को थाम लिया। बेइख्तियारी बेखुदी की हमजोली है, और ये दोनों हमजोलियां मोहब्बत की सफ़ों में अव्वल हैं। उसकी बेइख्तियारी ने उसकी खुशबू को जा लिया और बेखुदी उस खुशबू में झूमने लगी। एक बच्चा अपनी माँ को नज़म सुनाता हुआ फुटपाथ से उसके पास से गुजरा। उसने अपनी हालत में फिर भी तब्दीली नहीं की। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। अरवा से मुबर्रा हस्तियों ने जाना कि मोहब्बत की इबादत की जा रही है। फिर वो उसी के अंदाज में कमर को टिकाकर एक टांग को तिरछी करके खड़ी हो गई। जिंदगी की सवारी ने उन सब यादों को उसके पास उतारना शुरू कर दिया जो मुतल्लिकुल अनान बनी उसकी जात पर हुक्मरानी करने पर नाजा थी। तुम्हें बात करने की तमीज सीखनी चाहिए, तुम्हें थकन उतारने की मशक करनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से एक एक मंजर को बार बार दोहराती रही। लाहौर खाली हो चुका है, उसके पास सब नहीं रहा, तुम तो यहाँ हो। अमरहा, देखो मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। वो कलाबाजियाँ लगा रहा था। मेहराब के साथ टिकी खड़ी अमरहा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लाऊंगा। वो हाथ सीने पर बांध कर खड़ा हो गया। जाओ कर लाओ,
अमरा उसे जवाब दे रही थी। उनके हाथ में बोर्ड्स होंगे, जरूर होने चाहिए। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। सारी ड्रैगन परेड मेहराब के सामने सजी खड़ी थी और उसमें वो मुस्कुराती हुई खड़ी थी। एक बार तुम भी तैयार रखना, उसने उसके गाल को छूकर कहा। वो तो मैंने कब से तैयार कर लिया, कहकर वो परेड में भाग गई और वो उसका नाम लेते हुए उसके पीछे भागने लगा और पीछे से उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। मुझसे शादी करोगी अमरा? दोनों आमने सामने खड़े थे। सारी परेड उनके गिर्द इकट्ठी होने लगी। सारा हजूम उन दो के गिर्द सिमट आया। चीनी साख्ता ड्रमों की कितारें सजा दी गईं और सुर्ख लिबास पहने लड़कों ने ड्रमस्टिक को हवा में बुलंद कर लिया। हाँ, उसने वो मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजा ली जो ताउम्र नहीं सजने वाली थी शायद। सुर्ख लिबास वालों ने अपने उठे हाथों को ड्रमों पर बेकाबू हो जाने दिया। रंग फैल गए, खुशबू बिखर गई, चिराग जल उठे, दिन सज गया। बाहर निकल आई एक अमरा और एक आलियान के गिर्द सारी परेड दायरे में चिकटाने लगी। तो उनकी बहार का माखिज वो थे। हाँ, इस बार उनकी बहार का माखिज वो थे, मशरकी सुंदरी और अरब का सुल्तान। अमरा ने हाथ फैलाए और कुछ बर्फ उसमें इकट्ठी की और उसमें मिटते बनते होलों की तरह उछाल दी, जो वहाँ नहीं था और सिर्फ वहाँ ही तो था। तुम इतनी देर से आए आलियान? उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया और वो खड़ा हो गया। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? उसकी ठोड़ी को छूकर उसने शरारत से पूछा। क्या ना करती? होंठ का कोना दांत में दबाकर उसने कहा, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। देखो आलियान, तुम्हारा मैनचेस्टर बर्फ में डूब रहा है। उसने सफेद मैनचेस्टर की तरफ हाथ किया। देखूं जरा मेरे मैनचेस्टर को कौन देख रहा है? उसने 2 उंगलियों से उसकी नाक पकड़ ली। मुझे अमरा कहते हैं, कौन नहीं। अपनी नाक छुड़वा कर उसने उसकी नाक मरोड़ कर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए बर्फ इकट्ठी कर दूं अमरा? उसने उसके मुंह के सामने आकर पूछा। उन दोनों की आंखों ने तवील सफर तय किया जिसके कभी ना खत्म होने की दुआएं की जाती हैं। बर्फ क्यों? ताकि तुम उससे अपनी पसंद का घर बना लो। बल्कि आओ चलो यहाँ बैठ कर घर बनाते हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे बर्फ के ढेर के पास ले जाने लगा। नहीं आलियान, तुम यहाँ मेरे पास खड़े रहो, कहीं मत जाओ, वादा करो कहीं नहीं जाओगे। उसकी आवाज में सारा बचा खुचा दर्द सिमट आया। दोनों एक साथ जुड़े मेहराब में दुबके थे। उनके सर एक दूसरे से मस हो रहे थे और दाएं हाथों की हथेलियां अपनी लकीरों समेत एक दूसरे में मदगम हुई थी। नहीं जाऊंगा, उसने उसके गाल पर फूंक मारी और अरब की रेत ने उड़कर मुंह की पेशानी का बोसा लिया। सिया चौगे में लिपेटे आंसू से भीगे चेहरे को उसने जमीन पर सजदे के लिए तैयार किया। वो मोहम्मद बख्श के लिए खुदा से उसकी सारी रहमतें मांगने वाली थी और फिर वो खुद को खुदा के हवाले कर देने वाली थी। आमना एक दरवेश सिर्फ औरत उस मर्द से दस्तबरदार होने जा रही थी जिससे वो वाबस्ता हुई थी। उसने आंखें बंद की और उन आंखों के पर्दे पर मोहम्मद बख्श को पाया। उसने आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। आलियान ने अमरा की, अगर मैं बर्फ होती तो तुम्हारे कदमों पर गिरती, तुम बर्फ होती तो मैं भी बर्फ होता। मुझे वही होना है जो तुम्हें होना है अमरा। उसने दोनों हथेलियां उसके गालों पर रखकर कहा। वो हंसने लगी। यारम यारम, वो गुनगुनाने लगे। मुझ पर जो राज खोला गया है वो तुम हो अमरा। नाक फिर उसके हाथ में थी। कैसा राज? यही कि जिंदगी क्या है। जिंदगी अमरा है। वो हंसने लगी और उसने अपना सर दीवार के साथ जड़ दिया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगी और फिर उसे आंखें खोल देनी पड़ी और उनकी नमी को हाथ की पुष्ट से साफ करना पड़ा। वहाँ खड़े खड़े उसे कई पहर बीत चुके थे, फिर भी वो वहाँ ताउम्र खड़ी रहने पर बजिद थी और यादों के रेवर पर हंटर मारे गए और वो लापता होने के लिए भाग खड़े हुए। जिंदगी अपनी सवारियां लिए आगे दौड़ गई।
दादा ने उसकी मन्नत की कि वो भी कहीं घूमने के लिए चली जाए और खुद को मैनचेस्टर के तलस्सुम से दूर ले जाने की एक कोशिश उसने भी कर देखी और सामान बांधकर एन के पीछे फ्रांस चली गई। उसके साथ घूमने की कोशिश में मसरूफ रही और नए साल के आगाज पर एफल टावर से जन्म लेते जश्न को गैर दिलचस्पी से देखती रही। उसे वहां मौजूद मजमा के वहां मौजूद होने की कतई समझ नहीं आई और ना ही इस बात की कि वहां इतना शोर हंगामा क्यों था और सारी दुनिया की आतिशबाजी जो आइफल के जिस्म से फूट रही थी वो किसे और क्यों अच्छी लग रही है। एक दूसरे को कंधों पर उठाए वो क्यों नाच रहे हैं। वहाँ क्या था जो इतना अच्छा था कि वो सब अपनी नजरें हटाने के लिए तैयार थे, ना मुस्कुराहट के लिए। अमरा ने बेबसी से अपनी हथेलियां मसली। ये सब इतने खुश क्यों हैं? मबहूत कर देने को कोई मंजर तैयार ना हुआ, दीवाना बना डालने पर कोई आलम कादिर न रहा। बेमिसाल अजाइबात अपनी मिसाल खोने लगे। फराकी यान ने सब मानित कर डाला था। आलियान ने मैड्रिड के आसमान पर बनते मिटते आतिशी रंगों के जलवों पर नजरें गाड़नी चाही और वो ऐसा करने में नाकाम रहा। उस पर थकन सी सवार हो गई, जबकि अभी तो रात शुरू हुई थी। उसके आगे खड़े कार्ल, वीरा और साई उछल कूद कर रहे थे और वो बेबसी से खंडर खंडर सा इधर उधर कुछ तलाश कर रहा था। सबसे नजरें बचाकर उसने कहीं दूर निकल जाना चाहा। कहाँ जा रहे हो आलियान? वीरा ने पूछा। मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, बस अभी आया। उसने झूठ बोला और तेजी से हजूम में खुद को गुम कर लिया कि वीरा उसे लिपक कर आ न ले। वो चलता रहा और मैड्रिड के एक गुमनाम से छोटे से कहवा खाने में बैठ गया। वो कॉफी की कितनी प्यालियां पी चुका था, वो गिनती भूल चुका था। उसने अपना सर लकड़ी की मेज पर रखा था और नजरें गली में साज बजाते उस नौजवान पर टिका दी थी जिसके सामने कई बच्चे और बूढ़े नाच रहे थे। इतने भद्दे साज और आवाज पर ये सब कैसे नाच सकते हैं और आखिर वो क्या वजह है जो उन्हें ऐसे नाचने पर मजबूर कर रही है। वो सोचने लगा। सांस का तार टूटा और उसे एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। अच्छा तो साज इसलिए रुका और तार यूं टूटा। उसने मेज पर पड़े अपने सर का रुख बदल लिया और इस बार उसकी नजर एक टूटे हुए लैंप पोस्ट पर जा ठहरी जो कभी रोशन होता होगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।